Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and this is Ritika Chhabra. So I know that we have met after so long, but today we are going to start with a new topic, that is ray optics. And this time I have changed the method, medium of teaching or discussion, because in ray optics we have to deal with a lot of formulas and a lot of figures. So I guess this is sort of a appropriate way for that. But still, if you feel like this method has some flaws or this needs some corrections or something like that, so you can write in the comment section below the video. So guys, आप without any hesitation जो है वीडियो के नीचे comment section में लिख सकते हो how you like this method or not, and what kind of suggestions you feel that it may work in the coming future. हम अपनी वीडियोस को कैसे improve कर सकते हैं. So I am every time open to suggestions, and I read to all the comments below the comment section below the video. So guys, let's get started with the topic. So in ray optics today we are going to mainly discuss about refraction. So as we know that reflection is a part which we basically cover in 9th, 10th, 11th. So basically in 12th we are going to focus more on refraction and the optical instruments, prism, and much more about lenses. So this is all in the ray optics, and ray optics is basically a part of optics, and in 12th we have to deal with ray optics. In ray optics we are going to study a lot of things, but side by side ray optics has another part that is optics has another part that is wave optics. So this is all we are going to study in optics. Okay, so ray optics is based mainly on the diagrams and much more, and wave optics is not like that stuff, but in optics you have to focus on the writing section and the formulas and the diagrams. So diagram अच्छे से जो बना लेगा, जो diagram को अच्छे से remember कर लेगा, उसका ray optics is super. ठीक है, तो ray optics में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, बहुत बेसिक सी थ्योरी है. ठीक है, कोई भी टॉपिक आएगा बेसिकली थ्योरी आएगी, उसका कोई डायग्राम आएगा, कोई लेंस आएगा. ठीक है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी वर्किंग बताएंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बड़ा इजी है करने के लिए. बट इफ यू पे अटेंशन टू इट देन ओनली इट इज इजी. सो गाइज, व्हाट इज अ रे? सो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज अ रे? बेसिकली इट इज अ पाथ, ठीक है, along which light travels. Okay, so जिस भी path से light travel करती है, that is basically ray. Okay, so next comes that what is refraction. ठीक है, अभी हम basically जैसे कि मैंने की पॉइंट्स में लिखा है कि हम refraction of light के बारे में, refraction के कुछ basic terms और laws of refraction and something about lenses भी पढ़ेंगे if the time would allow us. So refraction is basically the bending of light. Bending, और in अगर मैं थोड़ा और appropriate कहूँ, या फिर it is a phenomena of change in path of light when it is traveling from one medium to another. Okay, so reflection और refraction में basic सा difference हमें मालूम ही है. Refraction और reflection किस terms में आपस में differ करते हैं. सो रिफ्लेक्शन में हमें मालूम है कि जो मीडियम है वो सेम होता है. ठीक है, इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, से दिस इज एयर. ठीक है, सो अगर एयर में ही लाइट रे आई, एयर में ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रिफ्लेक्शन. सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, बाउंस बैक हो जाना लाइट का, दैट इज रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है? रिफ्रैक्शन में आपके पास दो मीडियम होते हैं, से एयर और ग्लास और समथिंग लाइक दैट. कोई भी मीडियम हो सकता है. सिंस एक मीडियम थोड़ा रेयर होता है और एक मीडियम थोड़ा डेंसर होता है, रेयर और डेंसर मीडियम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, दैट इज नॉट इन जनरल टर्म्स. हम जो है ना, हमारी परसेप्शन ऐसा होता है कि रेयर मतलब कि थोड़ा सा जो डेंस है, हम वो जनरल लैंग्वेज लगाते हैं कि डेंस मतलब गाढ़ा, या फिर डेंस मतलब जहां पर आपकी जो डेंसिटी है किसी भी चीज की वो ज्यादा है. बेसिकली डेंसर से यहाँ ये मतलब नहीं है,
हम रे ऑप्टिक्स में या फिर ऑप्टिक्स में डेंस या रेयर की जो टर्म्स है वो म्यू में बात करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये वो वाला डेंस और रेयर नहीं है, बट स्टिल भी हम अपने कंफर्ट के लिए थोड़ा सा कनेक्टिंग हमें लगता है कि डेंस मतलब कि थोड़ा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हनी सो इट इज अ डेंसर मीडियम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लास इट इज अ डेंसर मीडियम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर इट इज अ रेयर मीडियम। रेयर मतलब जो थोड़ा कम डेंस है, ये हमारे टर्म्स हैं जिससे हम थोड़ा याद रखते हैं चीजों को। सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पर रेयर और डेंस आप ऐसे समझ सकते हैं। सो दो मीडियम्स है मेरे पास, ठीक है, और रिफ्रैक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली द चेंज ऑफ पाथ या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सो इफ सपोज मेरे पास इफ दिस मेथड हैज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल। इफ सपोज आई हैव अ रे ऑफ लाइट, ओके, like this, and this is angle I, okay. सो ये एक मीडियम से अगर रेयर मीडियम से जा रही है तो डेंस मीडियम में क्या होने वाली है? नॉर्मल के अवे की टूवर्ड्स। वी हैव स्टडीड इट इन अर्लियर इन 9th और 10th आई गेस। सो जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, डेंस मीडियम में जाती है रे अगर कोई, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे जो है वो बेंड हो जाती है लाइक दिस। सो दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। हियर आई इज ग्रेटर देन आर। सो आई नो दिस डायग्राम इज नॉट वेरी मच क्लियर टू यू, बट जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ आई गेस आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इफ दिस केस गेट्स रिवर्स, इफ दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, एंड दिस टाइम वी आर टॉकिंग दैट दिस इज डेंसर मीडियम and this is rare medium, you know that. So dense से rare में जाएगी तो जो normal से light है वो towards जाएगी कि away जाएगी? So pretty much clear that it will go away from the normal. Okay, these are the basic rules of refraction. So and the most important thing कि जब भी आप कोई भी रे को डिपिक्ट कर रहे हो, so it has some direction. अगर ये डायरेक्शन मेंशन करना भूल जाते हैं हम, ये हमारा बहुत ही जो है ना कॉमन सा पॉइंट ऑफ मिस्टेक है जो हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं। सो डायरेक्शन मेंशन करना हमेशा मस्ट है। अगर रे पे एरो नहीं लगा ना तो वहां मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जबकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ दिस इज द रेयर मीडियम। सो आई नो दैट यू people know these things, and this is just for the introduction of the chapter, so I am not going to spend much time on it since it has a lot more important things to discuss. So now what are the laws of refraction? What are the laws of refraction? First is what is the first law? कि जो angle of incidence है, angle of incidence, sorry, this is the second law. The first law says that the incident ray, the refracted ray and the normal. So if we talk about this diagram, so it is the incident ray which is making an angle I with the normal. This is the incident ray, the refracted ray, okay, this is the refracted ray and the normal. And the normal, they basically lie in the same plane, okay, they lie in the same plane. And this is very but obvious, ये इतना point important नहीं है, but the second point is a bit important, that is also known as Snell's law in terms of optics. So why it is important? We first discuss what is the second point or the Snell's law, that the ratio of the sine of the angle of incidence, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given media. ये ऐसा पॉइंट है जो आज तक हम रट्टा लगाते आए हैं, बट इस चैप्टर में इसका बहुत यूज होने वाला है। यूज इन द सेंस कि स्नेल्स लॉ हम जगह जगह अप्लाई करके कुछ कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये पॉइंट को हम पहले जब 9th में होते थे तो थोड़ा डिफिकल्ट मानते थे, बट इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। बेसिकली अगर मैथमेटिकली लिखूं तो साइन ऑफ आई, इफ दिस इज नॉर्मल, दिस इज
the angle of incidence which the incident ray is making with the normal, and this is the angle of refraction. ठीक है, so sin of angle of I to the sin of angle of R का रेशियो जो है that is constant for a given medium, and that is what we call as refractive index of a medium. If we are talking as the first medium to be air, ठीक है, and second medium to be glass. If suppose, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूं आप लोग को, तो basically that is equals to mu ag, or you can say mu AB if this medium is A and this medium is B. So in general that is mu AB, and this is known as the relative refractive index. Relative refractive index क्यों? Because in respect to some medium we are calculating the refractive index of a medium. If suppose we are calculating the refractive index of a glass, so what do we write? Medium glass below and with respect to air, with respect to जिसके भी है उसको ऊपर डालना है, and basically that is equal to mu g upon mu a. ठीक है, तो ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है with respect to some reference point, that is हम एयर या फिर वैक्यूम लेके चलते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी बात है. सो जरूरी नहीं है कि पहला वाला मीडियम जो है हमेशा एयर ही हो, इट कैन बी वाटर, ठीक है, इट कैन बी हनी, सब मेटल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो जिस भी मीडियम है बेसिकली पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बेसिकली अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 1.5 के बराबर होता है, और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते बिकॉज आई हैव डिस्कस दैट म्यू ए जी जो है बेसिकली म्यू जी अपॉन म्यू ए, सो द सेम टर्म्स हैं, तो फिर इनका कोई यूनिट नहीं होगा. इट इज डायमेंशन, इट इज यूनिटलेस, but it is equal to a constant for a given pair of media, say air or glass, water or glass, or water or any metal. ठीक है, सो एंड ये हमें ध्यान रखना है पॉइंट, ये मैंने एजी को रिमेंबर करने के लिए एक बात बता रही हूँ कि जिस भी मीडियम में रे जो है रिफ्रैक्ट होती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे आता है, और जिस मीडियम से आ रही है उसका ऊपर आता है. सो दैट इज द वे टू रिमेंबर दिस लॉ. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ of refraction, and now we are going to see some important things that we have to note about refractive index of a medium. ठीक है, so that is dependence of refractive index. Refractive index कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अभी हम जो बात करके आए कि किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, अभी हम एग्जांपल से ही समझेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कुछ ऐसे लिखते हैं, दिस इज आर, सो दिस इज मीडियम ए, दिस इज बी, से दिस इज रेयर. हम ये अपनी कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, डेंस कोई भी हो सकता है, रेयर कोई भी हो सकता है, मीडियम, ठीक है. सो दिस इज मीडियम ए बी. अगर हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ए, सो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली बात, द डेंसिटी ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट. द डेंसिटी ऑफ टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट, एयर की डेंसिटी कितनी है, से ग्लास की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है. एंड म्यू ऑफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, से ग्लास की अगर मैं बात करूं with respect to air, so basically this is mu g upon mu a. ठीक है, तो बेसिकली ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए इसलिए हम एयर की बात कर देते हैं. तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज बेसिकली आई गेस 1.5. ठीक है, सो जितनी ज्यादा डेंस होगा सब्सटेंस से, ग्लास है, ग्लास के आगे हम हनी ले लें तो उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, तो आई गेस वाटर का अगर हम देखें तो वाटर का होता है 1.33. डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा डेंसिटी, इट मीन्स हमें क्या पता चला कि जो ग्लास है दैट इज मच डेंसर देन वाटर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इट मीन्स वो ज्यादा डेंस मीडियम है. सो बेसिकली लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज wavelength of any color, any light ray or any color.
सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, या फिर आप बेसिकली वेवलेंथ की बात कर सकते हैं. सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा वी नो दैट वी हैव विबग्योर. सो आई फील लाइक सबको मालूम है कि विबग्योर क्या है. बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ कलर्स, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So basically in this order the wavelength increase or decrease, it basically increases. So red has the maximum wavelength, maximum lambda होता है, ठीक है. और हम अगर नीचे से ऊपर के ऑर्डर में जाएं, so क्या इंक्रीज करता है, that is the frequency. okay, सो नीचे से ऊपर के ऑर्डर में जाएं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे के ऑर्डर में जाएं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है. इफ आई एम सेइंग दैट रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट मस्ट हैव मिनिमम म्यू, दैट इज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. इफ ये जनरली हमारे पास कंसेप्चुअल में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, एंड प्लीज टेक दीज 1 मार्क्स सीरियसली, वेरी सीरियसली, बिकॉज अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है. एमसीक्यूज 1 मार्क बहुत आ रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स में तो पता नहीं अनलिमिटेड 1 मार्क्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड कंसेप्चुअल भी बना सकते हैं. इट इज जस्ट दैट कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है तो उसको डिटेल में पढ़ना है और हर एक छोटी चीज पे ध्यान रखना है. तो हमारा कंसेप्ट ये है कि आपको बोल देंगे कि इससे एक जो लाइट है वॉयलेट कलर की है और दूसरी लाइट जो है रेड कलर की है, सो और एक लाइट जो है ब्लू कलर की है. सो आपको बताएंगे, आपको पूछा जाएगा कि जो म्यू है बेसिकली वो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, म्यू को या इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ. सो से विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, हम जनरली विद रिस्पेक्ट टू एयर ही बात करते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपके पास 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और आपको एग्जाम में सीधा ये बोला जाएगा कि म्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ. डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि स्टार्टिंग विद द मैक्सिमम म्यू से स्टार्ट करके मिनिमम की तरफ जाना है. तो म्यू किसका ग्रेटर होगा, मैक्सिमम उसी का होगा जिसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी. अब वेवलेंथ किसकी मिनिमम है, वॉयलेट की, ब्लू की या फिर रेड की. सिंस हमें पता है कि ऊपर से नीचे के वाले ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज करती है, सो वेवलेंथ सबसे कम होगी वॉयलेट कलर की. ओके, तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम देखते हैं वेवलेंथ किसकी है, दैट इज ऑफ ब्लू कलर. वेवलेंथ उसकी कम होती है. तो आई गेस मैंने ये थोड़ा ही ऑर्डर गलत किया बट कुछ मैंने सही लिखा था. अब यहाँ पर ब्लू कलर की बात आएगी और सबसे नीचे रेड कलर. क्यों, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इट मीन्स म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा. सो दिस इज द रिजल्ट टू बी रिमेंबर्ड, दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एज वेल. ठीक है, तो जितना भी ज्यादा किसी भी मीडियम का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर किसी का अगर हाई होगा तो इट मीन्स उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जो है उतना ही कम होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फैक्ट टू बी रिमेम्बर्ड. सो अगर इसके लिए आपको कुछ भी, इफ यू थिंक दैट वी हैव टू स्मॉल टू फाइंड अ स्मॉल टेक्निक हाउ टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, दैट इज आप ऐसे कर सकते हो कि इफ सपोज मेरे पास कोई मीडियम है और उसका अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगी कि उसकी डेंसिटी को क्या होगा, बेसिकली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, डेंसिटी कम होगी तो उतना ही कम रिफ्रैक्टिव. सो हम इन जनरल टर्म्स ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डेंसिटी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, बट ऐसा होता नहीं है जनरली. मैं आपको भी बता चुकी हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फार मोर डिफरेंट टर्म्स जो डेंसिटी से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इन जनरल लेमैन टर्म्स में हम डेंसिटी से कनेक्ट कर लेते हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी मीडियम की, इट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है. ठीक है, हमें मालूम है कि जो किसी भी मीडियम की डेंसिटी है, ठीक है, तो वो अगर हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी वो कम हो जाएगी. ठीक है, अगर कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट, बट दिस इज नॉट द राइट वे आई गेस, बट स्टिल it will help you in your exams. Okay, so next we will discuss about basic about lenses. I will not go into detail because this lecture is becoming a bit lengthy.
सो एक लेंसेज का थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला, सॉरी द लेंस फॉर्मूला, हाँ, एंड द लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली. ओके, so what is lens basically? A lens is a combination of two or more refractive surfaces. So two or more refracting surfaces का combination है, और at least one of them must be curved. Combination of two refracting surfaces. So in lenses we have a bit of different types of lenses. So हम पहले तो डिस्कस कर लेते हैं convex. As we know that convex lens भी हो सकता है हमारे पास, या फिर concave lens भी हो सकता है. ठीक है, सो हम एक चीज है जिसमें हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना है उसको ध्यान से, कि जो कनकेव है वो डाइवर्ज करता है. इन मिरर्स बेसिकली दे आर ऑल अपोजिट. ठीक है, रे ऑप्टिक्स में बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है. अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में कनकेव मिरर जो है, कनकेव जो लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है, और जो कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है. कन्वर्ज करता है मीन्स वो जो लाइट रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है या फिर मिलाता है, मीट कराता है. बट कनकेव में द केस इज अपोजिट, वो डाइवर्ज करता है. वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसेज, ध्यान देना इस बात पर, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसेज. सो कनकेव जो है वो डाइवर्जिंग होता है नेचर में. डाइवर्ज मतलब लाइट रे को सेपरेट करना, ठीक है, बाइफिकेट करना, दैट इज डाइवर्जिंग. और कन्वर्जिंग मीन्स मीट कराना, किसी भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना. सो कन्वेक्स अगर लेंस की बात करें, वी हैव अगेन 3 bifurcations inside it. First is double convex. Okay. Second is plano-convex. And third is concavo-convex. सो गाइज बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है करने जैसा. बट डबल कन्वेक्स कैसे? बिकॉज दोनों जो भी रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस हैं वो कन्वेक्स लेंस से मिलके बने. अगर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस से अगर मिलके बने, सो दैट इज नोन एज डबल कन्वेक्स. पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास सर्फेस है रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, दैट इज ऑल्सो कन्वेक्स, और राइट वाला जो है वो भी कन्वेक्स है, दैट इज नोन एज डबल कन्वेक्स. प्लेनो कन्वेक्स क्या है? अगर एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस जो है वो प्लेन है, अगर वो प्लेन है, दूसरा वाला जो है वो कन्वेक्स है. तो कन्वेक्स के अंदर 3 टाइप्स में एक ना एक जो सर्फेस है रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वो तो कन्वेक्स होगा ही होगा. और थर्ड केस में दैट इज कनकेवो कन्वेक्स. कनकेवो कन्वेक्स मतलब एक जो सर्फेस है रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वो कनकेव होगा, और जो सेकेंड वाला है वो कन्वेक्स होगा. Okay guys, so very easy to remember. And inside the concave lens we also have 3 options. First is double concave. Okay, double concave नाम से भी पता चल रहा है, डायग्राम से भी मालूम चल रहा है. Second is plano concave, same as the first one, बस हमें एक के साथ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस जोड़ना है, एक के साथ कनकेव ही जोड़ना है, और एक के साथ कन्वेक्स जोड़ना है. तो प्लेनो कनकेव. एंड थर्ड इज कन्वेक्सो कनकेव, जहां पे जैसे कि लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है कनकेव कन्वेक्स. ऐसी अगर हम कनकेव लेंस में बात करें तो हमारे पास एक टाइप का लेंस है, दैट इज नोन एज कन्वेक्सो कनकेव. सो डबल कनकेव में हमने क्या किया, जो दोनों हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस हैं, दैट आर बोथ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. दिस इज ऑल्सो कनकेव, दिस इज ऑल्सो कनकेव. ठीक है, अंदर की तरफ जो भी डिप्रेशन होता है वो दैट इज नोन फॉर कनकेव. और इन प्लेनो कनकेव वी हैव वन प्लेन, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव कनकेव surface, refracting surface, and third one is convexo concave. convexo concave से बड़ा easily मतलब समझ में आ रहा है. This is convex surface, refracting surface, and this is concave. जो भी surface का अंदर को डिप्रेशन होता है that is concave, और जिसका बाहर को उभरा हुआ होता है that is convex.
So guys, this is a bit about lens.